السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو محترم ناظرین، اب سیکنڈ پارٹ اس کا یعنی تختی نمبر 1 مفردات کے معنی الگ الگ حروف، اس تختی کا سیکنڈ پارٹ، اس سبق کا دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ دوسرا حصہ پڑھاؤں گا۔ آدھی تختی میں نے آپ کو پڑھائی تھی اور آدھی باقی رہ گئی تھی، تو امید ہے کہ الف سے یا تک آپ نے اچھے سے پڑھ لیا ہوگا، مشق کر لی ہوگی، پریکٹس اچھی کر لی ہوگی، اور ہر حرف کی نکالنے کی جو ترتیب اور نکالنے کا جو طریقہ میں نے اس کا آپ کو بتایا تھا، اسی طریقے سے اسی انداز میں آپ نکالنے کے عادی ہو گئے ہوں گے، اور آپ کی زبان پر ہر حرف چڑھ گیا ہوگا اور آسانی سے آپ ادا کر سکتے ہوں گے اور کر لے رہے ہوں گے۔ تو چلیے اب اس کا دوسرا حصہ سیکنڈ پارٹ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ یہ ہے امتحان، یعنی یہاں پر ترتیب کے خلاف، جس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف سے یا تک ترتیب کے ساتھ ایک ایک حرف لکھے گئے ہیں، حروف تہجی کو، الفابیٹس کو، لیکن یہاں پر ترتیب کے خلاف لکھا گیا۔ اس میں آپ کو پہچاننا ہے، پہچان کر صحیح سے پڑھنا ہے، اور دو حرف یعنی ایک ہی مخرج کے 2 حرف ایک ساتھ لکھ دیے گئے ہیں تاکہ آپ اچھے سے اس کو الگ الگ اس کے مخرج کے ساتھ آپ پڑھ سکیں۔ تو چلیے آپ کو اچھے سے سمجھاتے ہوئے میں پڑھا دیتا ہوں۔ تو دیکھیے، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھ لیجئے، یعنی تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیے، چلیے، تا، تو، اب دیکھیے یہ ایک ہے تا، یہ باریک پڑھا جاتا ہے، اور یہ ہے تو، موٹا پڑھا جاتا ہے، تھوڑا سا منہ گول کر کے پڑھنا ہے آپ کو، تو، ٹھیک ہے۔ تو تا اور تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے، اسی لیے دونوں کو ایک ساتھ لکھا گیا۔ اس کے بعد ہے سا۔ سا پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ زبان کی نوک جو ہے دانتوں کے باہر ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر آپ سا کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سا، سین، تو دیکھیے دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک ہے سا جو زبان باہر نکال کے بولنا ہے، اور سین جس میں سیٹی کی آواز ہونی چاہیے۔ تو دونوں کے ایک ساتھ لکھا گیا تاکہ دونوں کو اچھے سا فرق کر کے پڑھیں، اور دونوں میں جو اس کا مخرج ہے دونوں کا وہ الگ الگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شین، صاد، اب دیکھیے یہ شین ہے، جیسے آپ بولتے ہیں شربت، ٹھیک ہے نا، شلجم، تو اسی طرح آپ شین پڑھیں، اور اس کے بعد ہے صاد، اس کو بھی موٹا پڑھا جاتا ہے منہ گول کر کے، جس طرح آپ سوس بولتے ہیں نا، سوس جو کھانے پف وغیرہ میں ڈالتے ہیں سوس، تو اسی طرح صاد، تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے، ایک شین اور ایک ہے صاد، یعنی قریب المخرج ہے، یہ قریب ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، تھوڑا سا 19-20، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ کو ایک ساتھ یہاں پر لکھ کر بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے ہا، اور اس کے بعد ہے ہا، دیکھیے کتنا فرق ہے، ایک ہے ہا جو حلق سے، اور ایک ہے ہا جو سینے کی طرف سے آپ کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہا، ہا، اس کے بعد ہے خو، قوف، اب دیکھیے دونوں بھی ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، یہ اوپر کے حصے سے خو، جیسے آپ کو بولنا ہے خرگوش، ٹھیک ہے، خربوزہ، اور ہے قوف، یہ جیسے قیچی بولتے ہیں نا آپ، تو اسی طرح قوف، قوف تھوڑا سا ڈیپ، یعنی جہاں سے خو نکلتا ہے اسی کے سے نیچے تھوڑا ڈیپ سے آپ کو نکالنا ہے حلق سے، قوف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے زال۔ زال بھی پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کس طرح پڑھنا ہے۔ زبان کی نوک کیا ہونی چاہیے؟ زبان کی نوک دانتوں کے باہر نکال کر تب آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زال، اس کے بعد ہے زا، ٹھیک ہے۔ تو جیسا آپ زیڈ پڑھتے ہیں، جیسے بولتے ہیں نا پزا، زا، تو وہ جو آواز ہے اسی طرح اس کو بھی نکالنا ہے آپ کو، زا۔ تو دیکھیے دونوں کو ایک ساتھ لکھا گیا تاکہ دونوں کا فرق، جو مخرج کا فرق ہے اسی فرق کے ساتھ آپ دونوں کی ادائیگی کر سکے۔ تو ایک ہے زبان باہر نکال کر زال، اور ایک ہے زا، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے ضاد۔ ضاد نکالنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا، چلیے تھوڑا سا میں آپ کو لکھ کر بتا دیتا ہوں یہاں پر۔ جیسے دیکھیے مثال کے طور پہ یہ آپ کی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبان کا یہ حصہ جو ہے نا آپ کا کنارہ دونوں سائڈ کا، چاہے لیفٹ لگائیں چاہے رائٹ لگائیں آپ، یہ دانتوں میں لگانا ہے آپ کو، ڈاڑھ میں، ٹھیک ہے، دونوں طرف کہیں بھی لگا سکتا آپ، چاہے سیدھے جانب لگائیں چاہے بائیں جانب لگائیں، دونوں طرف میں کہیں بھی آپ یہ جو ڈاڑھ میں لگا کر آپ ادا کریں گے، بس لگاتے ہی فوری ہٹا لیں آپ، جیسے زبان تھوڑا سا جو ٹیڑھا کر کے یہاں داڑھ میں لگا دیں آپ،
दौद, ठीक है, इस तरह मोटा पढ़ना है, कोई दौद नहीं पढ़ना है, डी से नहीं पढ़ना है और दाल की आवाज़ नहीं आना है, उसको परफेक्ट आप वौद यानी आप अदा करें तो आपको ये एहसास हो कि मैंने दाल नहीं पढ़ा और ना उसमें दौद की आवाज़ है बल्कि वौद आपने पढ़ा, उसको ये फ़र्क आपको महसूस होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उसके बाद है वो, तो ये जो ज़बान है ना यहाँ पर, ये सामने दांतों के पास ज़बान को लगाकर अदा करना है आपको, ठीक है, वो। तो उम्मीद है फ़र्क दोनों का अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वौद और उसके बाद है वो, ठीक है। उसके बाद है अलिफ, अलिफ ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। उसके बाद है ऐन, तो ऐन ये भी हलक से निकालना है, ठीक है, जहाँ से कौफ निकालता है ना वहीं से ऐन की आवाज़ आनी चाहिए और अच्छे से सॉलिड आवाज़ निकाले। अब ऐन ऐन नहीं करना है बल्कि ऐन, ठीक है। उसके बाद है नून, बा, फा, गौइन, इसको भी मोटा पढ़ना है, मुंह थोड़ा सा गोल कर दे, गौइन। उसके बाद है या, ता, मीम, लाम, दाल। तो इस तरह खींच खींच के, पहले भी बताया था मैंने आपको, अल्फ़ाबेट्स को खींच के अच्छे से पढ़ना है, अदा करना है, ठीक है। तो ये बेतरतीब हरूफ लिखे गए हैं ताकि आप जो यहाँ से अलिफ से या तक आपने पढ़ा है ना उसको अच्छे से पहचान लें आप, ठीक है, कौन सा हर्फ यानी आप पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर बेतरतीब, जैसा कि सारी किताबों में, सारी बुक्स में, जो स्कूल कॉलेज वगैरह की बुक्स में भी बेतरतीब इस तरह पहचानने के लिए लिखे जाते हैं इम्तिहान एक्सरसाइज के नाम से, ठीक है। तो चलिए आप शक्लें मैं आपको बता देता हूँ, शक्लें समझा देता हूँ। तो देखिए मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें, यानी जो ये शक्लें आपको याद रहनी बहुत ज़रूरी है। आगे जो है इसी तरह की शक्लें इस्तेमाल होंगी जो आपको पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पढ़ने का तरीका क्या है कि आप पढ़ेंगे अलिफ, अलिफ की दो शक्लें, अलिफ अलिफ, ठीक है। तो ये शक्ल है अलिफ की, देख लीजिए, ये इधर आकर मोड़ दिया गया, देखिए अलिफ को जो लिखा गया ना यहाँ पर शक्ल में, तो इस तरह इधर मुड़ा गया। अगर ये अलिफ अगर इधर कर देंगे ना तो ये फिर अलिफ नहीं रह जाएगा बल्कि ये लाम बन जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो शक्ल में दिखाया गया आपको इधर मुड़ा गया है क्योंकि अलिफ इधर होता है। जब भी किसी भी हर्फ के साथ अलिफ मिलकर आता है ना तो अलिफ बाद में आता है, ठीक है, ये होता है अलिफ, ये नहीं। अलिफ इधर से मिलकर कभी भी नहीं, यानी राइट साइड से सीधी जानिब से अलिफ मिलकर नहीं आता है बल्कि वो लाम बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए शक्ल में आपको जो यहाँ बताया गया इस तरफ मोड़ा गया है क्योंकि अलिफ इधर होता है, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड में रहेगा अलिफ बाई जानिब, ठीक है, और सीधे जानिब कोई और हर्फ होगा। उसके बाद दूसरी जो शक्ल है वहाँ पर, यहाँ पर ये है अलिफ की एक शक्ल ये है और दूसरी शक्ल ये है, तो इसी तरह की शक्ल वहाँ इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद है बा, बा की दो शक्लें, बा बा। अब इसमें थोड़ा सा खैर पढ़ा देता हूँ पहले, उसके बाद फिर समझा देता हूँ। ता, ता की तीन शक्लें, ता ता ता। तो देखिए इसको अच्छे से आप याद रखें कि ये नुक्ते का फ़र्क होता है, इसके ऊपर अगर नुक्ता आ जाए तो ये ता बन जाता है, ठीक है, और अगर नुक्ते हटा दे तो फिर ये हा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जीम, जीम की एक शक्ल जीम, ठीक है। अब जीम, हा और खा तीनों की शक्ल एक ही है, बस नुक्ते का फ़र्क है। इसी तरह बा, ता, सा तीनों की शक्लें एक है, बस नुक्ते से आपको पहचानना है। उसके बाद दाल, दाल की एक शक्ल दाल, और यही शक्ल जाल की भी है, बस इसके ऊपर नुक्ता आ जाएगा, ठीक है। यही शक्ल यानी जब मिलकर इस्तेमाल होगा तो इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो शक्ल है ये जाल की, अगर नुक्ता हटा देंगे तो दाल और नुक्ता डाल देंगे तो जाल, ठीक है। उसके बाद है आइन, ठीक है, आइन, आइन की दो शक्लें, आइन आइन, यही शक्ल गैन की भी है, इसके ऊपर अगर नुक्ता डाल देंगे, नुक्ता आ जाएगा तो वो गैन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फा, और याद रखिए कौफ की भी शक्ल यही है, ठीक है, फा और कौफ दोनों की शक्ल एक है, बस नुक्ते का फ़र्क है, अगर एक नुक्ता है तो वो फ़ा है, दो नुक्ते हैं तो कौफ है, ठीक है। तो फ़ा की दो शक्लें, फ़ा फ़ा, अब दो नुक्ते आ जाएंगे तो वो कौफ बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद है काफ, काफ की दो शक्लें, काफ काफ, तो अच्छे से देख ले शक्ल ये। उसके बाद है लाम, लाम की दो शक्लें, लाम लाम। अब देखिए यहाँ पर लाम, चूंकि ये इधर घुमा देने की वजह से यहाँ पर समझ लीजिए आप, ये लाम इधर अगर मुड़ जाए तो समझ लीजिए वो लाम है,
ठीक है। और अगर इधर से मुड़ जाए, यानी अगर इस साइड है तो फिर समझ लीजिए अलिफ है, और अगर इधर घूम जाए, इधर मुड़ जाए ये, तो समझ लीजिए लाम है। तो ये दो शक्लें यहाँ पर लाम की दी गई है, ठीक है। तो एक शक्ल लाम, ये भी लाम, ठीक है। उसके बाद है मीम, मीम की दो शक्लें, मीम मीम। उसके बाद है नून, नून की दो शक्लें, नून नून। उसके बाद है हा, हा की तीन शक्लें, हा हा। तो अच्छे से आप देखते जाएं और किताब में अपनी नज़र भी रखें और वहाँ देखकर अच्छे से समझें उसको, ठीक है। उसके बाद है हमज़ा, हमज़ा की दो शक्लें, हमज़ा हमज़ा, इसको जल्दी पढ़ना है, ठीक है। हमज़ा को जल्दी पढ़ना है, हमज़ा और अलिफ को जल्दी अदा करना है। उसके बाद है या की दो शक्लें, या, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बेतरतीब हरूफ जो लिखे गए थे वो भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। अब कुछ शक्लें जो लिख कर थोड़ा समझा देना मुनासिब मालूम होता है, वो ये कि जैसे मिसाल के तौर पर ये बा है, बा की शक्ल और ता की शक्ल, सा की शक्ल, ठीक है। और इसी तरह हम जो ले लेंगे वो नून की शक्ल, ठीक है। और इसी तरह या की शक्ल, ठीक है। ये देख लीजिए आप, बा की शक्ल जो यहाँ पर बताई गई वो ये है, और एक शक्ल मतलब छोटा सा भी रहता है, और एक शक्ल यूं भी दी गई है। तो ये बा है, ठीक है। ये बा की शक्ल यहाँ पर आपको बताई गई है। तो अब ये जो शक्ल दी गई है ना, ये बा की भी शक्ल है, ता की भी शक्ल है, यानी इसके ऊपर अगर नुक्ता आ जाए तो ये ता है, और अगर तीन नुक्ते आ जाए तो यही सा बन जाएगा, ठीक है। और अगर एक नुक्ता नीचे है तो बा है, दो नुक्ते नीचे है तो या है, ठीक है। और एक नुक्ता अगर ऊपर है तो फिर नून है। बस नुक्तों का फ़र्क है, बाकी शक्ल इन तीनों चारों की पांचों की एक ही है, ठीक है। नुक्ते से आपको पहचानना है, अगर एक नुक्ता नीचे है तो वो बा है, ठीक है। अगर दो नुक्ते नीचे है तो या है, और अगर तीन नुक्ते ऊपर हैं तो फिर सा है। अब चाहे वो यूं आए या यूं आए, जिस तरह भी आए, अगर नुक्ते से पहचानना है आपको, दो नुक्ते नीचे है या एक नुक्ता नीचे है, ऊपर एक नुक्ता है या दो नुक्ते हैं या फिर तीन नुक्ते हैं, वो नुक्तों से आपको फ़र्क महसूस करना है, फ़र्क करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बा इसकी शक्ल देख लीजिए, ता इसकी शक्ल ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, ठीक है। अब चूँकि ता की और हा की शक्ल, अब हा देख लीजिए, ये हा यहाँ पर जो समझाया गया आपको, दो चश्मी हा, अब इसकी एक शक्ल ये भी है और एक शक्ल ये भी दी गई है और एक शक्ल ये भी लिखी गई है, ठीक है। अब ये भी नुक्ते का फ़र्क है, अगर इसके ऊपर नुक्ता आ जाएगा तो ये ता बन जाएगा, और अगर नुक्ता हट गया तो फिर हा बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया आपको। तब देखिए, बा, ता और या और नून, चारों पांचों की शक्ल क्या है, एक ही है। तो ये शक्ल आप अच्छे से याद रखें, नुक्ते से आपको फ़र्क करना है, नुक्ते से पहचान के आपको पढ़ना है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और पढ़ने का तरीक़ा जिस तरह मैंने पढ़ाया उसी तरह मश्क करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए अच्छे से पढ़ें। इंशाल्लाह आपको तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना आ जाएगा। और मेरे लिए भी दुआ करें, और इसके लिए कुछ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।